Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurabh Gautam. In this video lecture, we are going to cover electrochemical cell, or you can also call it galvanic cell. In my all previous video based on electrochemistry, we had covered the topic electrolytic cell. Now we are moving toward the second part of the electrochemistry, which is very important, that is electrochemical cell. सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इट इज़ अ डिवाइस विच यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रिडॉक्स रिएक्शन विच विल बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आपको पता है जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं दे अकर ऑन देयर ओन, ओके, एंड दे रिलीज केमिकल एनर्जी, ओके, and the device which used to convert chemical energy produced in redox reaction into electrical energy is called as the galvanic or voltaic or electrochemical cell. Okay, for example, let us discuss a type of galvanic cell. This is the reaction. Zinc when react with copper sulfate is going to form copper and zinc sulfate. Okay, and if we write ionic equation for this reaction, that will be zinc plus copper plus 2 ion, because in copper sulfate copper is present in plus 2 ion, plus 2 form, is going to form Zn plus 2 ion plus copper. Okay, so we observe that in this reaction what is happening, zinc is going to get converted to Zn plus 2 ion and 2 electrons are going to released, okay, which is called as the oxidation. Okay, this is called as the oxidation. And what is occurring, secondly, copper plus 2 ion is getting converted to copper, which means it is getting reduced. Okay, copper plus 2 ion is gaining 2 electron and becoming copper neutral. Okay, so we can say that in this reaction there are two halves. One is oxidation half, जिसमें आपका जिंक जो है वो Zn प्लस टू में कन्वर्ट होता है by losing 2 electrons, and second is reduction half, जिसमें कॉपर प्लस 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जो जिंक ने छोड़े होते हैं गेट्स कन्वर्टेड टू दी कॉपर. ओके, और अगर हमने इस रिएक्शन को सेपरेटली 2 बीकर्स में करवा दिया, एट दैट टाइम जो इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकलनी थी, दैट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, clear? So in case of electrochemical cell, these two half reactions take place in two separate containers. Okay, and the rods present in the two separate containers connected by a wire. Okay, और जो उनके solutions होंगे which are used in the beakers, two solutions are connected by the salt bridge. So this is the basic arrangement in case of electrochemical cell. Okay, these are the two beakers taken. Zinc rod is dipped in zinc sulfate solution and copper rod is dipped in copper sulfate solution. Okay, and the solution are connected through by a salt bridge with each other. Okay, and the rods are connected via wire. Okay, clear? Now what will happen? Okay, in this solution, as we know that this is the cell reaction. Okay, zinc is going to react with copper sulfate to form copper and zinc sulfate. It means what will happen, zinc will oxidize, because in this reaction zinc is going to oxidize ना, Zn से Zn plus 2 बन रहा है. Okay, तो ऑक्सीडेशन होनी है, तो इट मीन्स व्हेन यू कनेक्ट दिस beaker to this beaker through salt bridge as well as wire, then what is going to happen, जो zinc है, okay, जो zinc rod में zinc present है, pure zinc, that will converted to Zn plus 2 ion and 2 electrons are lost. जो Zn plus 2 ion निकलेंगे वो तो यहाँ से solution में आ जाएंगे. Okay, और जो 2 electron loss होंगे they will come out through this wire. Okay, clear? And these electron travel toward this electrode. Okay, and what is going to happen at this electrode, this plate, copper plate, as we know that in the reaction copper is getting reduced. Okay, and so the electrons coming from this end, with the help of those electrons, 2 electron is gained by each copper plus 2 ion present in the solution. Copper plus 2 ion got attracted toward this copper rod. Okay, and gain 2 electron which are coming from this end. Okay,
तो कॉपर प्लस टू आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद दैट गेट्स कन्वर्टेड टू कॉपर, मेटेलिक कॉपर, और वो यहीं पे डिपॉजिट हो जाता है। सो अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलेगा, जिंक रॉड इज गेटिंग कोरोडेड, ओके, एंड कॉपर इज डिपॉजिटिंग ऑन द कॉपर rod, okay, and that copper is coming from the solution, okay, in which Cu plus 2 ions are present, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ये वाला इस रॉड के अराउंड, तो उसमें कॉपर प्लस 2 आयन प्रेजेंट है। तो वो कॉपर प्लस 2 आयन यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन लेके, ओके, जो इस साइड से आ रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन लेके दे गॉट कन्वर्टेड टू द कॉपर एंड गॉट डिपॉजिटेड ऑन दैट, ओके, क्लियर। सो इन दिस वे, this at this end there is oxidation occurring, okay, at this end there is reduction occurring, okay, and the electron which came out from this side will come to this side, okay, to reduce copper plus 2 ion. So electron will start flowing like this, okay, it means current will, as we know that if electron flow in this direction, current will flow in the opposite direction, so current start flowing in opposite direction. तो इस वायर के अलॉन्ग आपको करंट बनना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यही बोला जाएगा कि आपने करंट प्रोड्यूस कर दिया है, ओके, क्लियर। सो ये वाला जो हाफ जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है उसको बोलते हैं एनोड, और ये वाला जो हाफ जिस जहाँ पे रिडक्शन करवाते हो आप, दैट इज कॉल्ड एज द कैथोड। जो एनोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, तो हमें क्या लगता है कि ये बैटरी का नेगेटिव एंड है, ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि जो एनोड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में, दैट इज नेगेटिव एंड, ओके, बिकॉज वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते वो दिखते हैं ना हमें, सो दैट्स वाई इसको हम नेगेटिव एंड बोलेंगे, ओके। और जो कैथोड है, कैथोड साइड आपका इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड आ रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ये वाला एंड कौन सा है, ये पॉजिटिव एंड है, क्योंकि जिस साइड इलेक्ट्रॉन आते हैं वो पॉजिटिव माना जाता है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है दैट इज नेगेटिव एंड, ओके, और जो कैथोड होता है जहाँ पे रिडक्शन होती है दैट इज पॉजिटिव एंड, ओके, क्लियर। अब ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, दिस इज़ अ यू शेप्ड ट्यूब, और इस ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है, इस ट्यूब के अंदर आपके पास आपने भरा है इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स लाइक KCl KNO3, बट आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भरना है इन दिस सॉल्ट ब्रिज जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ओके। उसका क्या बेनिफिट है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का इस यू शेप्ड ट्यूब में भरने का, क्योंकि जस्ट वेट, सॉरी स्टूडेंट्स। सो इसके केस में क्या होगा आपके पास, आपने ये जो यू शेप्ड ट्यूब है इसमें आपने क्या भर दिया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। तो इट्स ये क्या करेंगे, अब इसको समझते हैं इसका फंक्शनिंग क्या है इस सॉल्ट ब्रिज का। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स किस में डाल के भरते हैं इसमें, अगर अगर जेली आती है हमारे पास, एक अगर अगर जेली होती है, अगर अगर, ठीक है, उस जेली में आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करके इस यू शेप्ड ट्यूब में भरे हुए हैं, ओके। तो अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो ये जो है आपके पास सॉल्ट ब्रिज, ये क्या करेगा, ये सर्किट को कंप्लीट करेगा, सर्किट विल बी कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अगर आपके पास आप ना लगाओगे ये, तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज ना हो, तो आपका सर्किट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। एंड यू नो दैट यू मस्ट बी रेड इन द फिजिक्स दैट सर्किट शुड बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू फ्लो द करंट, तभी करंट फ्लो होता रहेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एक तो काम ये है कि ये सर्किट को कंप्लीट करता है सॉल्ट ब्रिज, दूसरा काम क्या है, देखो जैसे आपका जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती जा रही है, तो हो क्या रहा है सोल्यूशन में, रॉड से जिंक से रॉड के जिंक से Zn+2 आयन बन के यहाँ पे इस सोल्यूशन में आते जा रहे हैं, ओके। तो इस सोल्यूशन में Zn+2 आयन की कंसनट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, ओके। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सोल्यूशन के कॉपर प्लस 2 आयन जो हैं दे आर गोइंग टू गेट डिपॉजिटेड ऑन दिस रॉड। तो यहाँ पे कॉपर प्लस 2 आयन, तो यहाँ पे कॉपर बनते जा रहे हैं, जो उसके साथ काउंटर आयन कॉपर सल्फेट है ना आपके पास, तो कॉपर सल्फेट में जो सल्फेट आयन बच रहे हैं, वो सल्फेट आयन जो है वो इस सोल्यूशन में एक्सेस में होते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन एक्सेस में होते जा रहे हैं, और इस सॉल्यूशन में Zn+2 आयन एक्सेस में होते जा रहे हैं,
तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की एक्सेस होनी शुरू हो जाएगी। नेगेटिव मीन सल्फेट, पॉजिटिव मीन Zn+2 आयन। सो और अल्टीमेटली क्या होगा, अगर ये एक्सेस ऑफ पॉजिटिव बन जाए, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव अगर बन जाए तो होगा क्या, जिंक से Zn+2 आयन बनता है ना इस एंड में, तो जो नया Zn+2 आयन बन के बाहर आना शुरू करेगा, उस Zn+2 आयन को जो एग्जिस्टिंग वाले Zn+2 आयन हैं वो रिपेल करके अंदर भेजना शुरू कर देंगे, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे फर्दर, अगर यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव एक्यूमुलेट हो गया तो Cr+2 आयन जो जा रहा है इलेक्ट्रोड की तरफ, इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्टेड टू दी कॉपर, न्यूट्रल कॉपर, वो एक्सेस ऑफ नेगेटिव जो है वो Cr+2 आयन को इतनी स्ट्रांगली होल्ड कर लेंगे, दे आर नॉट अलाउइंग दिस Cr+2 आयन टू गेट डिपॉजिटेड ऑन दिस। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका ये जो एनोड पे ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है और जो कैथोड पे रिडक्शन वाला रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाएगा, अगर यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव हो जाए और यहाँ पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव की एक्सेस को रोकने के लिए क्या किया जाता है, जो सॉल्ट ब्रिज है, व्हाट इट विल डू, सॉल्ट ब्रिज इस पॉजिटिव एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट इस साइड से इस साइड करवानी शुरू कर देता है, और सिमिलरली एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयन की जो मूवमेंट है वो इस साइड से इस साइड करवानी शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है, जितना भी एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आयन है, ठीक है, वो या तो इस सॉल्ट ब्रिज में आ जाता है या तो इस साइड आ जाता है। ठीक है, और जितना भी एक्सेस ऑफ नेगेटिव है वो यहाँ इस साइड से मूव करके वो इस साइड आ जाता है। ठीक, तो इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का जो एक्सेस है वो नहीं होने देता। क्लियर, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के थ्रू यहाँ से मतलब एनोड वाली साइड से कैटायन दूसरी साइड मूव कर सकते हैं, और सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से कैथोड वाली साइड से एनायन जो है वो दूसरी साइड मूव कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, तो इट मीन्स इस सॉल्ट ब्रिज में आयंस की मूवमेंट शुरू हो जाती है। क्लियर, और जिस साइड कैटायन मूव करते हैं वही बोलते हैं ना, वही करंट की डायरेक्शन होती है। तो अल्टीमेटली करंट कैसे फ्लो कर रहा है, जैसे आपको बताया था ना, एक्सटर्नल वायर में करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन ऐसे आते 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 ऐसे ये, तो अल्टीमेटली आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे इसलिए सॉल्ट ब्रिज की बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर आप सॉल्ट ब्रिज नहीं डालोगे तो अल्टीमेटली ये सेल जैसे ही बनाओगे 1 सेकंड भी नहीं चलेगा और डेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन हो गए और यहाँ पे कैथोड साइड एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयन हो गए। ठीक है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज है क्या, पहली बात, सॉल्ट ब्रिज आर यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक KCl, KNO3, K2SO4 एटसेट्रा इन अगर अगर एंड जेलेटिन। जेलेटिन इज ऑल्सो अ जेली टाइप मटेरियल। ओके, सॉलिड मटेरियल थोड़ा चाहिए ना उसको होल्ड करने के लिए, एंड अगर अगर इज ऑल्सो अ जेली टाइप मटेरियल। ओके, तो अगर अगर में ये इलेक्ट्रोलाइट डाल के मिक्स करके मिक्सचर बना के वो तो थोड़ा सा सॉलिड मिक्सचर बन जाएगा, सॉलिड जेली टाइप मिक्सचर बन जाएगा, उसको यू शेप्ड ट्यूब में भर देते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड एज दी सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐसे लेने हैं जो खुद रिएक्शन में इंटरफेयर ना करें, सो दैट्स वाई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वर्ड इज़ देयर। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करने हैं in order to prepare salt bridge. Okay, what is the main functions of salt bridge? First of all, to complete the electrical circuit by allowing the ions to flow from one solution to another solution without mixing the two solutions. ठीक है, ये ions की movement को allow कर देता है। ठीक है, clear, without mixing the solutions, इसी के थ्रू ions मूव करते हैं, जैसे Zn+2 आयन वो यहाँ से इस साइड को मूव कर रहे हैं थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज, और सल्फेट आयन जो है वो इस साइड से इस साइड को मूव कर रहे हैं थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज। ओके, मूवमेंट ऑफ आयन करवा रहा है विदाउट मिक्सिंग दी सॉल्यूशंस। सेकंड, दी टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस इन द टू हाफ सेल्स, वही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए सॉल्यूशंस की, अदरवाइज यहाँ पे एक्सेस ऑफ Zn+2 आयन हो जाएगा और यहाँ पे एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन्स हो जाएगा। ओके, अगर आपके पास यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज ना हो, और उससे क्या होता है अल्टीमेटली कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ रिडक्शन रिएक्शन, और एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड पे। तो मैंने ऐसे याद किया हुआ है, वो दोनों में कैसे
यहाँ पे O की थर्ड पोजीशन है, कैथोड में O की फिफ्थ पोजीशन है, अगर इस स्पेलिंग को देखो। ठीक है, तो जिसमें O पहले आता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन, मींस अनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, और जिसमें O बाद में आता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होती है। ओके, और एनोड कौन सा होता है? नेगेटिव एंड, क्योंकि ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे। ओके, तो ये लगेगा हमें कि ये पूरा बैटरी का एंड कौन सा है? ये नेगेटिव एंड है, और जिस साइड को जा रहे होते हैं हमें लगता है वो पॉजिटिव एंड है। ओके, क्लियर? सो ऐसे दिमाग में बैठा लो। ओके, तो अगर आप स्क्रीन कैप्चर करना चाहते हो तो इसकी कैप्चर कर लो अभी नोट्स के लिए। इसकी भी आप स्क्रीन कैप्चर कर सकते हो, सेकंड की। ओके, सो यहाँ पे अब एक और दे रखा है, अनदर फॉर्म ऑफ डेनियल सेल, और यू कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और यू कैन से गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसमें क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसमें क्या होता है? देर इज़ अ पोरस पॉट, एक पोरस पॉट लेंगे। ठीक है, उसमें जिंक की रॉड या जो भी आपके पास रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व हैं, जैसे आपने यहाँ पे रिएक्शन कौन सी कंसिडर करी है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज़ गोइंग टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक की रॉड आपने यहाँ पे डिप कर दी, ठीक है, इन दी सॉल्यूशन ऑफ किसमें? जिंक सल्फेट, क्योंकि आपने मेटल को उसी के किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखना है। तो यहाँ पे जिंक की रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, उस पोरस पॉट में आपने ये अरेंजमेंट सेट कर लिया, और उसी पोरस पॉट के बाहर वाला जो ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या किया? कॉपर सल्फेट डाला। क्लियर? और ये कंटेनर खुद किसका बना हुआ? कॉपर का। ओके, ये खुद किसका बना हुआ? कॉपर का। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये कंटेनर ग्लास का हो और इसमें आप कोई कॉपर रॉड डिप कर दो, ठीक है, जो कॉपर की हो, जैसे इन्होंने किया हुआ है। क्लियर? या आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये आपके पास कंटेनर ही कॉपर का हो। ओके, ऐसे भी किया जा सकता है कि ये कंटेनर कॉपर का हो। ओके, और उसका इस कंटेनर में जो सोल्यूशन भरा है, ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, दिस सोल्यूशन इज मेड इज कॉपर सल्फेट। ओके, और उसमें आपने एक पोरस पॉट डाल दिया, और उस पोरस पॉट में क्या दे रखा है? जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और उसमें ये जो रॉड डिप करी गई है दैट इज़ जिंक रॉड। ओके, और आप क्या करोगे? इन दोनों को, जिंक की रॉड को और कंटेनर को कनेक्ट कर दोगे, और यहाँ से आप करंट विड्रॉ करवाओगे। ओके, क्योंकि आपने ये सेल बनाया तो लेने के लिए बनाया ना, तो यहाँ से आप करंट विड्रॉ करवाओगे। और अगर ये ग्लास का जार लिया है आपने, इट मीन्स तो आपने कॉपर स्ट्रिप यूज़ करी होगी, तब आपने क्या करना है? जिंक की रॉड से वायर जो निकल रही है उसको कॉपर स्ट्रिप के साथ जो वायर अटैच्ड है उसके साथ अटैच करना है, और यहाँ से आप आउटपुट लोगे। ओके, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का काम कौन कर रहा है? ये जो पोरस पोर्ट ले रखा है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जिंक सल्फेट की ऑक्सीडेशन के दौरान Zn+2 आयन जो बनेंगे, यहाँ इस सोल्यूशन में जो एक्सेस में बनेंगे, वो इस यहाँ से इधर को पास कर जाते हैं। क्लियर? इस पोरस पोर्ट के थ्रू, क्योंकि पोरस पोर्ट का प्रिंसिप मतलब मेन पर्पज़ ही ये है। सिमिलरली यहाँ पे एक्सेस ऑफ जो सल्फेट आयन बनेंगे, जब कॉपर+2 आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन के इस कंटेनर पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन जो इस सोल्यूशन में बनना शुरू हो जाएंगे, दे विल ट्रैवल फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ओके, तो आपने इन दोनों सोल्यूशंस को, जो ये वाला सोल्यूशन है और ये वाला सोल्यूशन है, इसको मिक्स भी नहीं किया, और इनमें जो एक्सेस ऑफ आयंस बन रहे हैं उनकी मूवमेंट करवाने के लिए आपने क्या कर दिया? ये पोरस पॉट ले लिया हुआ। ओके, क्लियर? सो दिस इज हाउ you can make a Daniell cell without using the salt bridge. If you can prepare the salt bridge, then you can use this arrangement. Okay, clear? So, and this is the second example of the electrochemical cell. In this, the reaction occurring is this: copper is reacting with silver nitrate and there is formation of copper nitrate and silver. This is the spontaneous reaction. Okay, so the ionic equation for this reaction is this. Okay, तो आपके पास टू हाफ्स क्या बने? कॉपर जो है वो कॉपर+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ। कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा? कॉपर+2 आयन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, एंड रिडक्शन हाफ इज सिल्वर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सिल्वर बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दिस इज द रिडक्शन हाफ, जिसमें सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहा है? सिल्वर। सो नाउ, एंड दिस इज द अरेंजमेंट, सेम अरेंजमेंट। ओके, copper, here copper is the
ऑक्सीडेशन हाफ, तो ये हो रही है कॉपर जो है वो इस टाइम क्या है, एनोड। ओके, एंड कैथोड क्या है, सिल्वर, जहाँ पे रिडक्शन हो रही है, जिसमें सिल्वर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग सिल्वर। ओके, तो यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और कॉपर की ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये जो रॉड से कॉपर प्लस टू आयन बनेंगे वो सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे, तो सोल्यूशन में एक्सेस ऑफ कॉपर प्लस टू आयन बनने शुरू हो जाएंगे। बट टू रिमूव दैट कॉपर प्लस टू आयन विच इज़ प्रेजेंट इन द एक्सेस, तो ये सॉल्ट ब्रिज उसको हेल्प करेगा यहाँ से इस साइड ट्रैवल करने में। और सिमिलरली जब सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर प्लस आयन और नाइट्रेट आयन निकलते हैं ना, ये जो सिल्वर प्लस आयन है ये जब सिल्वर बन के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, तो सोल्यूशन में एक्सेस ऑफ नाइट्रेट आयन जो आएगा, उस एक्सेस को रिमूव करने के लिए आपको ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो उसको हेल्प करेगा इस साइड से इस साइड आने में। तो इस तरह क्या होगा, दोनों साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो एनोड जो है वो बाहर से क्या पेयर होगा, नेगेटिव एंड, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। और जो कैथोड है वो बाहर से क्या होगा, पॉजिटिव एंड, क्योंकि इस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। सो दिस इज कैथोड। ओके, और ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बनेगी आपके पास, ये वाली है। ओके, क्लियर। और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे ही है। ओके, क्लियर। अल्टीमेटली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, like this is the direction of current. ओके, क्लियर। बट और आप इसका भी ऐसे ही अरेंजमेंट सेट कर सकते हो लाइक दिस, विदाउट अगर सेल आपने लेना हो। ठीक है, बस याद ये रखना है कि कंटेनर, जैसे इसमें अभी थोड़ा सा और समझाने वाला पड़ा है, ये जो कंटेनर हुआ आपके पास, ये कंटेनर किसका लेना है। ठीक है, जैसे रिएक्शन क्या थी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज गोइंग टू फॉर्म कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये कंटेनर, अगर आपने जिसको आपने कंटेनर लेना है, जो आउटर मोस्ट कंटेनर है, ये कंटेनर उस वाले मेटल का लेना है जिस मेटल की हो रही है रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में जिंक की तो हो रही थी ऑक्सीडेशन। ओके, जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn प्लस टू आयन, कॉपर की रिडक्शन हो रही थी, तो इसलिए ये जो आउटर मोस्ट कंटेनर है ये उस मेटल का बनाना है जिसकी रिडक्शन होनी है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सिमिलरली अब इन दोनों में से, ठीक है, रिडक्शन किसकी हो रही है, सिल्वर की। ओके, तो अगर आपने इसका ऐसे वाला सेल बनाना है जिसमें सॉल्ट ब्रिज इन्वॉल्व ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये कंटेनर लेना पड़ेगा सिल्वर का। ठीक है, उसके अंदर डालना पड़ेगा सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। देन यू हैव टू पुट पोरस पॉट, और पोरस पॉट के अंदर आपने डालना है कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और उसमें आपने रॉड डिप कर देनी है कॉपर की। ओके, क्लियर। सो दिस इज़ द सेकेंड अरेंजमेंट, जो इसके लिए भी ऐसे ही बन जाएगा जैसे पीछे। बस याद ये रखना है कि आउटर मोस्ट जो कंटेनर है वो किसका होता है, हमेशा उस मेटल का जिसकी रिडक्शन हो रही हो इन दी सेल रिएक्शन। ओके, बट जैसे हमने एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमने क्या किया, हमने कॉपर रॉड को कॉपर सॉल्यूशन में डिप किया, और सिल्वर रॉड को सिल्वर सॉल्यूशन में डिप किया, जैसे यहाँ पे इस अरेंजमेंट में किया हुआ, और यहाँ पे। ठीक है, बट हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन होगी, कहाँ रिडक्शन होगी। जिस साइड का इलेक्ट्रोड कोरोड हो रहा है, कम हो रहा है जैसे, क्योंकि उसके जो मेटल के आयन बन बन के सोल्यूशन में आते जा रहे हैं, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ओके, और जहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल के आयन डिपॉजिट होने शुरू हो गए, मतलब मेटल जो है और बनना शुरू हो गया, और बन के डिपॉजिट होना शुरू हो गया, थिकनेस बढ़ रही है ना इसकी। तो इट मीन्स, और वहाँ पे क्या हो रही है फिर, इट मीन्स रिडक्शन। ओके, बट अगर वैसे प्रिडिक्ट करना हो कि अगर कॉपर सोल्यूशन में डाल के और सिल्वर को सिल्वर सोल्यूशन में डाल के आपस में कनेक्ट करें, ठीक है, तो किस साइड ऑक्सीडेशन होगी और किस साइड रिडक्शन होगी। ठीक है, क्लियर। उसके लिए आप कैसे करोगे, उसके लिए आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। ठीक है, कैसे, जैसे आपने देखो अब पिछले इस वाले सेल में क्या था, कॉपर को डिप किया था कॉपर के इलेक्ट्रोलाइट में, और सिल्वर को डिप किया था सिल्वर के इलेक्ट्रोलाइट में। तो इस साइड ऑक्सीडेशन होनी है और इस साइड रिडक्शन होनी है, वो कैसे पता लगेगा। अगर एक्सपेरिमेंटली करवा रहे हो फिर तो पता लग जाएगा, जैसे मैंने बोला कि आपको दिख जाएगा कि जिस साइड इलेक्ट्रोड, जो ये रॉड है, वो कोरोड होनी शुरू होगी, इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और जिस साइड रॉड के ऊपर और मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो गया, इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। वो तो देखने पे पता लगेगा ना। अगर आपने वैसे पता लगाना होता था कि मान लो आपने बोल के भेजना है किसी स्टूडेंट को
यहाँ भी देखना, कॉपर वाली साइड ऑक्सीडेशन होगी, सिल्वर वाली साइड रिडक्शन होगी। तो उसके लिए कौन सा टेबल यूज़ होता है? उसके लिए यूज़ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है क्या? इसमें सभी मेटल आयन की जब कन्वर्जन होती है मेटल में बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, उस रिएक्शन के दौरान वो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वो वैल्यूज़ दी होती हैं उनके सामने सामने। ठीक है, ये ऐसे टेबल्ड वैल्यू मिल जाती हैं आपको। ठीक, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव, इट मीन्स उस मेटल, जब वो मेटल अपने आयंस के सॉल्यूशन के साथ आएगा, जैसे मान लो ये मेटल मेटल है और ये मेटल आयन है, ठीक है, जब भी वो मेटल अपने मेटल आयन के साथ कांटेक्ट में आएगा, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है, इट मीन्स वो मेटल कन्वर्ट होना अपने आयन में, जैसे मेटल जो है वो अपने आयन में कन्वर्ट होना वेरी इजीली कन्वर्ट हो जाता है। ओके, वेरी वेरी इजीली। इट मीन्स व्हाट इट मीन्स कि उसकी ऑक्सीडेशन, सॉरी उल्टा हो गया, वेट, लेट मी स्टार्ट विद अगेन। ओके, अगर आपके पास ई नॉट की वैल्यू जो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में दे रखी होती है, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव हो, मतलब दे क्या रखे हैं ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स, ठीक, इट मीन्स जितना ज़्यादा ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स उसका रिडक्शन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, नहीं समझे? अब इसको इसी एग्जांपल से कोरिलेट करते हैं। जैसे कॉपर था और सिल्वर था, तो कॉपर के रिडक्शन के लिए जब रिएक्शन होता, अगर कॉपर का रिडक्शन रिएक्शन हो तो उसके लिए पोटेंशियल ये जनरेट होगा, सिल्वर का रिडक्शन रिएक्शन हो तो उसके लिए ये पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, +0.8, इसमें +0.38। ओके, तो दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? सिल्वर का। इट मीन्स कॉपर और सिल्वर का सिस्टम जब आप कॉन्टैक्ट में लेके आओगे तो सिल्वर की तरफ क्या होगी? रिडक्शन। अगर सिल्वर की तरफ रिडक्शन होगी तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन होनी है। ये तो समझती हो ना कि इन रिडॉक्स रिएक्शन के केस में +1 में भरते हैं हम। ओके, इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों होनी ही होनी है। तो दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो उस साइड होनी है रिडक्शन, तो दूसरी साइड हो जाएगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देख लिया कॉपर और सिल्वर में से सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो इट मीन्स अगर कॉपर और सिल्वर का रिएक्शन होगा, ओके क्लियर, या कॉपर और सिल्वर का सिस्टम बना के आप उसको कॉन्टैक्ट, आपस में कॉन्टैक्ट में लेके आओगे, तो कॉपर साइड सिल्वर साइड क्या होगी? ये रिडक्शन, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो ऐसे ही आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का पता कर का यूज़ करके पता लगा सकते हो किस साइड रिडक्शन होनी है, किस साइड ऑक्सीडेशन। ओके, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेटर द टेंडेंसी टू शो reduction. This is the main point which you have to keep in your mind. Okay, and in the next video lecture we are going to discuss electrode potential. Okay, but before that, one more thing, there is the representation of galvanic cell. galvanic cell की representation short form में कैसे करते हैं? जैसे मान लो आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है, जिंक कॉपर सल्फेट इज फॉर्मिंग जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो सेल रिएक्शन क्या है? ये सेल रिएक्शन है। ठीक है, हो क्या रहा है? जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो आप सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? ये दो डंडियां लगा के, मतलब दो स्लैश। ओके, देन कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? लाइक दिस। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा था? जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn+2 आयन, और कैथोड पे क्या हो रहा था? कॉपर+2 आयन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू दी कॉपर आयन। ओके, क्लियर? या आप ऐसे लिख लो, ऑक्सीडेशन हाफ पे जो रिएक्शन हो रहा है, देन दिस 2 बार्स, देन रिडक्शन हाफ पे क्या रिएक्शन हो रहा है उसको लिखना है। ऑक्सीडेशन हाफ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn+2 आयन इस रिएक्शन में, एंड रिडक्शन हाफ पे क्या हो रहा है? कॉपर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर, कॉपर+2 आयन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर। ओके, और ये जो ये सिंगल स्लैश है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट करती है इंटरफेज को।
जैसे आपने इस सोल्यूशन में, जैसे मान लो ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, इसमें जिंक की रॉड को डिप किया है। ये जो सरफेस है ये वाली, जहाँ पे जिंक और Zn+2 आयन कांटेक्ट में आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड एज द इंटरफेस। ठीक है, तो जिंक और Zn+2 आयन आपस में इंटरफेस में हैं, ठीक है, और जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 आयन में, तो इसलिए ऐसे दिखाया। ठीक है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? वो ये हो रही है, Zn इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn+2 आयन। ठीक है, और Zn+2 आयन की कंसनट्रेशन क्या है वो आपने साथ में ब्रैकेट में लिखनी है ये। ठीक, और कैथोड पे क्या हो रहा है? Copper+2 आयन इज गेटिंग आयन की कंसनट्रेशन, क्योंकि आयंस की कंसनट्रेशन होती है सॉल्यूशन में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे Copper+2 आयन की कंसनट्रेशन आपने साथ में मेंशन करी, इंटरफेस कॉपर। ठीक, मतलब ऑक्सीडेशन पे क्या रिएक्शन हो रही है वो लिख दो। फिर दो डंडीज ये वाली ठीक है, जो दिखाती हैं सॉल्ट ब्रिज को, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं ये। और देन एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? एनोड पे हो रही है, सॉरी, देन कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? ठीक है, कैथोड पे क्या हो रही होती है? कैथोड पे हो रही होती है रिडक्शन। जैसे यहाँ पे Copper+2 आयन कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, तो वो दिखा दिया आपने लाइक दिस। ठीक है, और एनोड साइड से कैथोड साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता लग जाएगा इस साइड से इस साइड है। ठीक, और जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, और यू कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, clear? So this is all about galvanic cell, or you can say electrochemical cell. In the next video lecture we have to discuss electrode potential and how we measure electrode potential। मतलब कि हमने ये जो पोटेंशियल्स मेजर करके रखे हैं, ये मेजर कैसे करें? ये टेबल में ले तो ली वैल्यूज़, बट इनको मेजर कैसे किया गया है? हाउ वी विल मेजर दैट? ओके, क्लियर? तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, so till then, thank you, see you in the next video।